Today I'm going to introduce you the subject cryptography and network security. So in the cryptography and network security, in this syllabus we have two parts. First part is dedicated to cryptography. Majority of the portion is related to cryptography, and some parts is related to network security. Okay, that I have already discussed with you. Okay, so now let's start with understanding what is cryptography. Okay, so uh, let me explain what is cryptography. So if we go by the dictionary description of the term cryptography, it is you can see that as per concise Oxford dictionary, it says that cryptography is the art of writing or solving codes. Okay, so now you may be worried about what is code. So code is nothing, it is just a way of uh, transforming one information that is in one form to the same information into another form. Okay, so you might have heard of the term coding and decoding. Have you heard coding and decoding? Yes. Okay, so I think most of you may be knowing what is coding and decoding. Coding means, let me give you a simple example so that you will understand. So suppose that you have a word, let's say Ram is going to school. Okay, so you have a sentence, sorry, not word. Ram is, so this sentence is there. Now, this sentence is in a normal English text. It is a normal English text. Now, I can transform this text in a many of way in some other form. Okay. Now, what output will be, you output you will get will depend on how what kind of transformation you are applying. So let's say we are applying some transformation over this text, over this sentence, and you get some some text or is that is not looking very much looking similar to or related to this text. It may be a sequence of numbers, it may be a sequence of letters also, or some other characters. Now let me give you a simple example. आपने कोडिंग डिकोडिंग में मैनी टाइम ये किया होगा. So let's say I am having word ram. Now I am transforming this word into some other thing. So let's say that I am using very simple transformation. The transformation is that I am going to replace each of the English letter by its next letter in the English alphabet. Okay, so this is the transformation mechanism that I am applying. What I am doing, मैं एक लेटर को उसके जस्ट अगले इंग्लिश के अगले लेटर से रिप्लेस करने वाला हूँ. सो लेट्स से आर के बाद आपको मालूम है अल्फ़ाबेट में क्या आता है, एस, ए के बाद बी, एम के बाद एन. ठीक है. नाउ आप कहेंगे अगर जेड है तो जेड के बाद क्या आएगा, जेड तो लास्ट अल्फ़ाबेट है. सो व्हाई वी विल डू ए रोटेशन. सो जेड इज रिप्लेस्ड बाय ए आएगा तो आप उसे बी से रिप्लेस कर देंगे, बी है सी से रिप्लेस कर देंगे, एंड सो ऑन. सो नाउ दिस इज अ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म एनी टेक्स्ट यूजिंग any English text that doesn't include digits or any other thing. You can transform any English text into another text. ठीक है. So that text may not be looking a English text, or it is actually not a English text. So this kind of transformation is known as codes or writing codes. ठीक है. समटाइम्स आपने सुना होगा ना कोड वर्ड, इस पे जिसमें हिडन मीनिंग छुपा होता है. सो नाउ दिस कोड कंटेन्स ए पर्सन's नेम, है ना. सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउन एज कोडिंग. ओके, and sometimes we call it secret coding. So why we want to do secret coding? We want to do secret coding so that we can hide the meaning of or semantic of this word.
ठीक है. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड पर लगाया. यू मे अप्लाई दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए सेंटेंस और मे बी ऑन ए होल टेक्स्ट, bunch of text. Okay, so this kind of transformation is known as coding. Okay, so आपको मालूम होगा, आपने किया होगा कोडिंग. सो समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि आप कोड से कर इंग्लिश को इंग्लिश लेटर से ट्रांसलेट करें. यू कैन ट्रांसलेट लेटर्स इन डिजिट्स एज वेल. ठीक है, आप उनको लेटर्स को डिजिट्स में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. जैसे आपने ए को 1 असाइन कर दिया, बी को बी 2 असाइन कर दिया, कोड असाइन कर दिया और देन लेटर्स को आपने रिप्लेस कर दिया. अप टू 20 जेड तक चले गए आप. और जीरो से शुरू कर सकते हैं आप कोडिंग. ए इज 0, बी इज 1, सी इज 2 एंड सो ऑन अप टू जेड इज 25. एंड देन जो लेटर्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग डिजिट्स जो आपने फिक्स किया है उससे रिप्लेस कर दिया. सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउन एज कोडिंग. एंड रिवर्स आप जब आप करते हैं, जब आपको इफ़ आई गिव यू दिस वन एंड देन व्हाट यू डू, आप वापस इसे इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं. सो आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन टी लगाया और इस साइड आपका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, टी इन्वर्स. So this kind of transformation is known as decoding. एंड ये क्या है आपके कोडिंग. आपने राम को एसबीएन में कन्वर्ट किया, दिस इज सो दिस प्रोसेस इज नाउन एज कोडिंग. एंड वापस एसबीएन को राम में कन्वर्ट किया यूजिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, टी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग. सो now I think you might have understood what is coding and decoding. So cryptographic definition as per the concise dictionary is that it is a art of writing or solving codes. Okay, so this is the definition of cryptography, but this definition doesn't reflect the modern cryptography that we see today. Okay, we will talk about that later. So, as per this definition, cryptography is merely an art of writing or solving codes. Okay, so that means आपने एक टेक्स्ट को एक, so now you can develop different kind of coding mechanism. मैंने एक आपको simple coding mechanism बनाया. So you can have more complex transformations. So जिससे आपने एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में कोड कर दिया एंड देन उसका इनवर्स से आप डिकोड कर लेते हैं. So this coding and decoding is actually a way of transforming one text to another text so that you can hide some information. ठीक है, so why we are doing this coding and decoding is our main purpose is to hide the meaning of the text. Okay. So cryptography was a art of writing and solving code to hide the information simply. Okay, now you can observe this word art has been used here. So this definition is indicating that cryptography is an art. Okay, so actually this definition consider the doesn't consider the modern cryptography that have become now, that have been science now, that have changed to science. Initially the cryptography actually was considered as an art. ओके, बिकॉज आप कितने कॉम्प्लेक्स कोड बना सकते हैं, कितने इनोवेटिव तरीके से सोच करके कितने कॉम्प्लेक्स कोड बना सकते हैं, देन यू विल बी कॉल्ड गुड क्रिप्टोग्राफर. ओके, सो प्रीवियसली व्हेन क्रिप्टोग्राफी वाज बीइंग यूज्ड, सो पीपल यूज्ड टू डेवलप codes so that they can hide the information, and the other opponent persons were try to do the decoding so that they can extract the hidden information. Okay, so that's why initially cryptography was considered as an art, and so obviously it is art, so it requires creativity. आप कितने creative तरीके से creative हैं and कितनों innovative तरीके से सोचते हैं, so that you can come up with different kind of coding and decoding mechanism that are very difficult to decode. So that used to be done initially. So let me tell you a story. So actually cryptography is very older thing that have been practiced, that has been practiced by the persons, even kings in the ancient times. So let me give you an example. That example was given by Professor Bimal Roy of ISI Kolkata in a workshop where I attended that workshop. So that story was like that. So there was a king
in ancient Greek or something, at some place in I don't remember the time, or he also did not mention the time. So there was a king in some king in ancient time. Okay, so that the name of the king is not significant. The story is more important. So try to focus on the story. We can make the name of the king as A and B. Okay, so let me take that. So suppose there was a king. So that king was named as A, and this king was have a friend that was who was also was a king, B, and there was another king that was opponent of this king, A. So A have a enemy, another king who was enemy of A, and let's that the name of the king was O. Okay, so now what happened actually, the king somehow get to know that the opponent O is trying to अटैक किंग ए, जो ओ है वो ए को अटैक करना चाह रहा था. ही वॉज प्लानिंग एक्चुअली. सो आपको मालूम है कि एवरी किंग्स यूज टू हैव स्पाइस. नाउ डेज आप देखते हैं एवरी कंट्री हैव स्पाइस एंड दे हैव एजेंसीज, दे यूज टू डू स्पाइंग. सो you might have seen in many various movies and web series or all the kind of programs and novels. uh, a lot of kings used to have some spies. Okay, they used to travel using horse or by some other way. Okay, so O was planning to attack A, and somehow with the help of his spies, O know about A actually. A को पहले से ही पता चल गया in advance that O is planning to attack me. So now obviously, since this is a war, so obviously A wanted the help of his friend. Generally सारे kings ऐसा करते भी थे. They used to seek for help from their friends. So A wanted to help to get the help from B. Okay, now but A does not wanted to know about this request to O. A नहीं चाहता था कि O should be able to know this, that I am requesting help from B. Okay, so now obviously A को क्या करना था, ये जो मैसेज है रिक्वेस्ट का B को कि A मुझ पर अटैक O मुझ पर अटैक करने वाला है. A was sending this message and wanted to send this message to B, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये जो मैसेज है हेल्प के लिए वो O को इसके बारे में कुछ भी पता चले. ओके, सो ओबियसली नाउ ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो होता था पहले स्पाइस के थ्रू होता था. स्पाइस यूज टू ट्रेवल and they took information from one point to another secretly. So now what A had decided, A ने एक अलग तरीका सोचा, क्योंकि उसे मालूम था कि if my spies will travel with that information or the letter that A have given requesting the help from B, so that the letter to be given to B, so that letter need to be secret. सो ओबियसली अगर वो अपने जो पहले आपको मालूम होगा जो लेटर्स थे वो एक कपड़े पर लिखे हुए होते थे और मोहर और सब इस्तेमाल होता था. बट ए डज नॉट वांटेड टू सेंड दिस काइंड ऑफ लेटर, क्योंकि ऐसा लेटर वो भेजेगा तो ओबियसली स्पाई अगर एक ओ के हाथ लग गया तो ओ विल नो एवरीथिंग कि ए जो है ना बी से रिक्वेस्ट कर रहा है हेल्प के लिए. सो ए ने एक नया तरीका सोचा. व्हाट ही डिड, he saved the head of his spy. He get the head of the spy saved. उसने अपना जो स्पाई है उसके हेड को सेव करवा दिया. एंड देन उसके ऊपर परमानेंट इंक से, उस समय परमानेंट इंक और इस टाइप की इंक्स जो आपको मालूम है बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ होती थी, या इंक बहुत पहले पीपल हैव इन्वेंटेड. सो एक के हेड पर वो मैसेज उसने राइट करवा दिया. एंड देन ए के हेयर जो अपना स्पाई था उसके जो आपका स्पाई था उसके हेड पर मैसेज राइट करवा दिया. एंड देन
स्पाइस के जो हेड्स के जो हेयर्स हैं उसको ग्रो करने दिया कुछ टाइम तक। ओके, एंड देन जब सफिशिएंट अमाउंट में हेयर ग्रो हो गए, अब आप ऐसा भी नहीं कि आप पूरे के फुल लेंथ में हेयर जितनी नॉर्मल लेंथ है उस लेंथ तक ग्रो करने का इंतजार किया जाए, बिकॉज सिचुएशन है बाद दैट मैसेज शुड बी डिलीवर्ड टू बी टाइमली, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते थे। सो एक लिमिट तक हेयर ग्रो हुए और फिर उस स्पाई को जाने दिया गया। So ultimately, obviously, generally, every king used to capture the spies of their enemies. So that spy was also caught ultimately before giving that information to B. Now, since that spy was caught, and so that spy was bring to A, O के पास, sorry, bring to O, and then O ने उसके obviously O was looking for some information that spy was carrying, but O did not find any information in possession of that spy. उसके पास कुछ भी information नहीं मिली उसे. Then O was surprised that this spy was going, definitely he was taking some information, but there is nothing in that possession. उसके सारे कपड़े जो भी belongings थी, everything was checked properly many time, but O did not find out any information with that spy. But O was sure that obviously spy was taking some information, bringing some information. Then उसको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। अल्टीमेटली ओ के बाद में दिमाग में आया कि आई थिंक उसने ए के जो 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 ए का जो स्पाई था उसके जो हेयर्स हैं उसको अनयूजुअली लेंथ का पाया। दैट ही नोटिस दैट ये जो इसके जो हेयर्स हैं दे आर नॉट ऑफ नॉर्मल लेंथ। आपको मालूम है प्रीवियसली लोग लंबे हेयर्स रखा करते थे। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स वर नोटिस बाय ओ। सो ओ ने जो है ना फिर क्या किया, उसके हेड को सेव कराया। अल्टीमेटली ही गॉट दैट इंफॉर्मेशन। So this was the one way that initially the information used to communicated by the kings. Similarly आपने कई मूवीज़ में देखा होगा और नाटकों में भी देखा होगा कि जो इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेटली कई तरीके से लिखा जाता था। कई बार आप पेपर पर लिख देते थे एंड नथिंग वाज विजिबल ऑन दैट पेपर। जब आप उसको मोमबत्ती के ऊपर या लाइट के ऊपर जो फायर के ऊपर लेकर के जाएंगे देन दोज लेटर्स विल बी विजिबल, और इनविजिबल इंक इस्तेमाल करना। लेकिन वो जो मेथड्स थे वेल नोन हो गए थे, लोगों को अल्टीमेटली उसको क्रैक करने के तरीके भी डेवलप्ड हो चुके थे। सो दैट्स वाई एनी टाइम जब भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन लोगों को एंशियंट टाइम में करना होता था दे यूज टू डिवाइस न्यू वेज, नए नए तरीके लिखे यूज करना पड़ते थे। ओके, सो नाउ ये भी आपने देखा कि इसमें जो है ना नया तरीका क्या खोजा गया। एक पर्सन इसमें 3 स्टेप्स थी एक तरीके से। सो अगर आप यहाँ एल्गोरिथमिक तरीके से बात करें तो आप देखें अगर यहाँ तो इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए एक तरीके से जनरली हम इनक्रिप्शन करते हैं। वी यूज टू डू इनक्रिप्शन। सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इनक्रिप्शन इन डिटेल एंड मैथमेटिकल मॉडल भी देखेंगे, वी विल सी। बट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन को हाइड करने का जो मैकेनिज्म था, कोडिंग करने का मैकेनिज्म, दैट वाज वेरी सिंपल। 3 स्टेप्स थी। सेव द हेड ऑफ द स्पाई, राइट द इन्फॉर्मेशन एंड लेट द हेयर ग्रो। एंड देन इस इनक्रिप्शन को या जो इन्फॉर्मेशन हाइड करने के कोड था उसे ब्रेक करने का तरीका क्या था? सेव द हेयर ऑफ द स्पाई, रीड द मैसेज, सिंपली, है ना। वेरी इजी वे वाज देयर। बस सिर्फ ये मालूम होना चाहिए था कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ हिडन है ना। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म, यू कैन से दैट दिस वाज द मैकेनिज्म दैट वाज यूज्ड टू हाइड द इन्फॉर्मेशन। और भी कई तरीके इस्तेमाल होते थे। दिस इज एन एग्जाम्पल। नाउ ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? वी विल टॉक अबाउट दिस स्टोरी इन व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिप्टोग्राफिक मॉडल और हाउ वी डू क्रिप्टोग्राफी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन द क्रिप्टोग्राफी, उस समय बात करेंगे ओबियसली। सो क्लासिकल जो क्रिप्टोग्राफी थी उसमें सिंपली हमेशा लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता था कि लेट्स डेवलप ए वे ऑफ न्यू वे ऑफ राइटिंग सीक्रेट कोड्स, नए नए तरीके से सीक्रेट कोड लिखने के तरीके पीपल यूज टू फाइंड आउट। एंड देन जो अपोनेंट्स होते थे उनका ऑब्जेक्टिव होता था कि ये जो कोड्स बनाए लोगों ने उनको डिकोड करना। कोडिंग एंड डिकोडिंग का इनका गेम चलता रहता था बीच में। People came up with different coding mechanism. People break that coding mechanism by just seeing the encoded message.
ठीक है, तो उस समय आपके पास केवल इनकोडेड मैसेज अवेलेबल होता था और आप उसी से डिकोड कर देते थे। जैसे आपने जूलियस सीजर के बारे में भी सुना होगा। जूलियर जो अपने जो सीजर रोमियो जूलियट, सो जो रोमियो जरा इन्फॉर्मेशन लेटर जो भेजना था जूलियट को, तो वो क्या करता था कि हर लेटर को नेक्स्ट 3 लेटर से नेक्स्ट 3rd लेटर से रिप्लेस करके एक मैसेज बना करके सेंड कर देता, सो दैट वो मैसेज अगर किसी के हाथ लग जाए, सो नो बडी विल बी एबल टू नो कि व्हाट इज रिटन देयर अनटिल उसे मालूम ना पता चले कि जो लेटर्स हैं वो हर लेटर को नेक्स्ट 3 लेटर से रिप्लेस किया गया है। एंड दिस इंफॉर्मेशन वाज ऑल्सो कन्वेड टू जूलियट दैट अगर आपको इन्फॉर्मेशन को डिकोड करना है, सो बैकवर्ड 3rd लेटर से वापस रिप्लेस कर दीजिए, सो यू विल गेट द ओरिजिनल मैसेज। सो दैट वाज द वे हाउ द सीक्रेट कोडिंग एंड डिकोडिंग वाज यूज टू बी डन। ओके, सो जो उस समय जो एंशियंट टाइम है, स्पेशली 1960-70 के दशक से पहले और 70 के दशक से पहले, जो भी इंफॉर्मेशन का एरा, जो क्रिप्टोग्राफी का एरा था, दैट एरा वाज यूज टू कॉल्ड क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी एरा। ठीक है, सो ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में जो क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म यूज होते थे, हम उसे क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक एरा की कैटेगरी में डाल देते हैं। दैट वाज क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी। सो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी वाज एक्चुअली एन आर्ट, जैसा कि मैंने बताया, इट वाज एन आर्ट। There was no scientific approach was there. People used to develop secret codes एंड देन जो अपोनेंट थे वो क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन देख करके उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से ही डिकोड करके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को रिकवर करने की कोशिश करते थे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग चलता रहता था, है ना। सो बट वहाँ पे जो कोडिंग करना है वो भी इनोवेशन रिक्वायर्ड होता था, इनोवेटिव थिंकिंग रिक्वायर्ड होती थी, क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती थी, एंड सिमिलरली डिकोडिंग करने के लिए भी आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती थी। सो दैट यूज टू गो ऑन। नाउ मैनी टाइम पीपल केम, एंशियंट टाइम में भी कई लोग जो ना नए कोड बनाते थे और क्लेम करते थे कि माई कोड इज वेरी मच सिक्योर, नो बडी विल बी एबल टू डी कोड। बट इट यूज टू बी हैपेंड दैट कोई भी किसी ने कोड बनाया वो बाद में डिकोड हो जाता था। सो वी विल सी सम ऑफ द cryptographic mechanism that have been developed during the classical cryptographic era, but they used to be understood that they are secure, but they can be broken very easily. नए नए तरीके आ जाते थे ब्रेक करने के। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द मॉडर्न टाइम। सो क्रिप्टोग्राफी को जो पूरा एरा है या जो डोमेन है, क्रिप्टोग्राफी बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ हो रही है, बट नाउअडेज जो जिस फॉर्म में क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो रही है वो फॉर्म बदल चुकी है। सो नाउ आप पूरे क्रिप्टोग्राफी के जो पीरियड है उसको 2 फेजेस में बांट सकते हो। एक है क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी जो कि 1970 या उससे पहले, देखिए ध्यान रखना इसमें एग्जैक्ट कोई बाउंड्री नहीं है कि इसी साल के बाद से हम क्रिप्टोग्राफी को मॉडर्न बोल रहे हैं और उससे पहले को क्लासिकल बोल रहे हैं। देयर इज़ नो क्लियर डिस्टिंक्शन। सो अराउंड 1950-60 जब कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले जो क्रिप्टोग्राफी यूज होती थी हम उसे क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। एंड क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी वाज एन आर्ट, एंड इस 1960-70 के बाद जो क्रिप्टोग्राफिक डेवलपमेंट हुए वो एरा में, वो जो एरा का जो टाइम था, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। सो नाउ वी आर इन द एरा ऑफ मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, लेकिन वी विल टॉक अबाउट द क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो। सो नाउ मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी हैव बिकम ए साइंस। ठीक है, so modern cryptography has been science. Classical cryptography was an art. मैंने आपको बताया कि it wasn't just treated as an art, but modern cryptography have become a complete science. So lot of research have been done so that lot of groundwork and fundamental theories have was developed in the era of 1960, 70, 80 और उसके बाद में लॉट ऑफ थ्योरी वाज डेवलप्ड। सो धीरे धीरे आपकी जो क्रिप्टोग्राफी थी दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन आर्ट टू ए साइंस। ओके, पहले क्रिप्टोग्राफी में लोग मैकेनिज्म बनाते थे और कोई प्रूफ नहीं देते कि इतना सिक्योर है। देयर वाज नो थ्योरी अवेलेबल सो दैट उसके बेस पर लोग प्रूव कर पाएँ कि आपका मेथड कितना सिक्योर है, कितना सिक्योर नहीं है। सो देयर वाज नो प्रूफ ऑफ द सिक्योरिटी in the classical era, but modern era mein lot of groundwork was done, lot of theory was developed, so that now people started using the proofs so that they can claim or they can inform other that look, this much security my mechanism offers.
ठीक है। सो सिक्योरिटी के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर हुआ और फिर पीपल स्टार्टेड और पीपल वर एबल टू प्रूव देयर मेथड्स सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के बारे में साइंटिफिकली आर्ग्यू कर पाते थे। सो ये क्यों पॉसिबल हुआ, लॉट ऑफ थ्योरी वाज डेवलप्ड एंड क्रिप्टोग्राफी धीरे धीरे आर्ट की जगह पर साइंस की तरह ट्रीट की जाने लगी। एंड नाउ अब आपको क्लास मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में कोई भी क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म लेके आना है, सो नाउ यू हैव टू पुट इट प्रॉपरली इन ए मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करना होगा। एंड देन यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ इट्स सिक्योरिटी के इतना सिक्योर है आपका मेथड। तो कितना सिक्योर है ये सब कैसे प्रूव करते हैं, वी विल सी दैट लेटर कैसे प्रूव करते हैं। बट नाउ यू हैव टू फॉलो ए साइंटिफिक अप्रोच एंड you also need to provide the proof of its security. Okay, so modern cryptography have become science now. Okay, so now let's see the difference between modern cryptography and classical cryptography. मैंने कुछ differences आपको बता दिए, let's make those differences very much clear. So in case of classical cryptography was an art, you can see here. Now modern cryptography is a science. Now classical cryptography में जो objective होता था वो होता था आपका information को hide करना। So hiding the information is called confidentiality। जो ऑब्जेक्टिव है हमारा हाइड करने का वो क्या है, वी वांट टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स हाइडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज, दूसरी पार्टी से इंफॉर्मेशन छुपाना। तो जैसे आप मान लीजिए एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब कोई इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो दे वांट टू हाइड देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनिमीज। ठीक है, सो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स टू हाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज और थर्ड एंटिटीज, थर्ड वर्ल्ड यू कैन से। केवल सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन रहेगी, नो अदर पार्टी शुड बी एबल टू नो। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। सो जो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी में जो मेन गोल होता था वो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने का था। जैसे किंग का एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो किंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, द किंग ए वांटेड दैट ओ शुड नॉट बी एबल टू नो व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द मैसेज। मैसेज था क्या, लेटर क्या भेजा जा रहा था, ऑब्वियसली हालांकि ओ को पता चल गया था, बट वो ये जानना चाहता, केवल वो इंश्योर करना चाहता है केवल बी को इसके बारे में पता चले, ए के बारे में कोई पता ना चले। ठीक है ना। तो बी को कैसे पता चलता, ओबियसली जो स्पाई था उसको बता दिया गया था, तो वो बता देता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो बी काम कर लेता था, बी को अवेलेबल हो जाती है इन्फॉर्मेशन। ओबियसली अगर ओ क्रिएटिवली नहीं सोच पाता तो ओ को कुछ नहीं पता चलता कि ये स्पाई के पास कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, या डमी स्पाई भेज दिया था, कोई दूसरा स्पाई वो इन्फॉर्मेशन लेके गया है, सो दैट आप इसमें उलझे रहो और वो स्पाई निकल जाए। समटाइम्स ऐसी टैक्टिक भी प्ले की जाती थी। So now modern cryptography not only deals with confidentiality, it also deals with some other aspects of security. Security केवल confidentiality ही नहीं है, informations की security में अकेला confidentiality नहीं आता, there are lot of things। पहला है जैसे कि message authentication। So message authentication means if you have received some message then you should be able to know or you should be able to determine by some surveys that this message is coming from genuine sender and it has not been modified in between by anyone। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन। सो कोई ऐसी सर्विस जो आपको ये अश्योरेंस देती है कि आपको जो मैसेज रिसीव हुआ है आप वो डिटरमाइन कर पाएँ कि वो मैसेज मॉडिफाई भी नहीं हुआ है और जेन्युइन सोर्स से आया, ये कंफर्म कर पाएँ। तो व्हेन वी विल से दैट द मैसेज दिस सर्विस दिस इज मैसेज ऑथेंटिकेशन सर्विस। ओके, सो मैसेज ऑथेंटिकेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक आपको सेंडर की आइडेंटिटी कंफर्म करना कि जो सेंडर बता रहा है अपने आप को कि जिस सेंडर से आना है इन्फॉर्मेशन है वहीं से आई है, और बीच में किसी ने इसको मैनिपुलेट करके मॉडिफाई तो नहीं किया है। देन डिजिटल सिग्नेचर मीन्स you have sent some message, so you should be able to generate a signature similar to the signature that you do generally on papers। जैसे आप कोई लेटर लिखते हैं, एनवलप कुछ लिखते हैं, एफिडेविट बनाते हैं या कुछ पेपर्स बनाने डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ और ऑल दैट, इन पर साइन करते हैं, तो सिग्नेचर इंश्योर करता है कि ये आपने किया हुआ है। सो वो दैट इज़ गिविंग सम अश्योरेंस। जैसे आपने एक लेटर, यू रोट ए लेटर टू वाइस चांसलर एंड यू साइन इट, then vice chancellor receive that letter, then he should be able to confirm कि आप ही ने भेजा है, तो वो आपके कैसे कंफर्म करता है, आपका सिग्नेचर वहाँ देख करके। तो we also wanted to have
that equivalent of that signature, but electronically. So that signature mechanism is known as digital signature. So digital signature is a technique in cryptographic domain that assures कि जो information है उस that is signed by the sender itself, और वो जो साइन की गई है सेंडर या जो भी पार्टी ने वो उसी ने जनरेट की है इन्फॉर्मेशन. सो इट गिव्स द ट्रस्ट. सो इफ़ यू रिसीव एन डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंड बाय लेट्स से मी, मैंने मान लीजिए आपकी आंसर शीट को डिजिटली साइन करके आपको दे दी है, सो आपको मालूम है कि ये आंसर शीट मैंने ही चेक किया. सो डिजिटल सिग्नेचर दैट डिजिटल सिग्नेचर विल गिव दैट अश्योरेंस टू यू. नाउ ध्यान रखना, डिजिटल सिग्नेचर ये नहीं होता कि आपने सिग्नेचर का स्कैन करके चिपका दिया PDF में. दैट इज नॉट द डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ दैट वी विल सी लेटर. डिजिटल सिग्नेचर के बाद आपने देखा ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन मीन्स you want to confirm the identity of the person. So there is a service in modern cryptography, there are lot of mechanism are there जिनकी मदद से आप किसी पर्सन की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो वही है जो अपने आप को क्लेम कर रहा है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस, डिजिटल कैश, all these comes under the area of cryptography. Okay, so classical cryptography was an art, but modern cryptography is a science, and it deals with varieties of domains: message authentication, digital signature, protocols for exchanging secret keys, authentication protocol, confidentiality, message integrity, e-auctions, e-currency, digital currency. All that comes under the area of modern cryptography. Even Bitcoin आपने आजकल नाम सुना होगा, cryptocurrency और all that, है ना, blockchains, all that. So these comes under the area of cryptography. Security and privacy, availability. So lot of things are there actually modern cryptography covers lot of aspects of security in our day-to-day life. Okay, जबकि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी में एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, कॉन्फिडेंशियलिटी. So this is the second difference. Third difference was who were the users of the cryptography. So in case of classical cryptography, the majority of the users or main users of the classical cryptography were the military organizations and intelligence organizations. ठीक है, so the military organizations और intelligence organizations थे यही क्रिप्टोग्राफी को यूज करते थे क्लासिकल एरा में. लेकिन मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के एज में इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन. So for example, we are also using cryptography at that moment. We are doing a online class, so हमारा जो class है streaming हो रहा है and only authorized person are getting that streaming. No other party is able to see that streaming, है ना, और कोई join नहीं कर पाएगा. So being some security is there, so cryptography is also there. So generally cryptography is everywhere. When you ever do ticket booking, reservation, fund transfer, fee submission, form submission, seeing the grade online, all that. So cryptography is everywhere almost. Okay, so and almost everyone uses this. Even prime minister से लेकर के सामान्य नागरिक तक जो ना, everybody is using cryptography, and knowingly or unknowingly obviously. आप फोन कॉल कर रहे हैं, then you are also using cryptography. सो वट एवर यू आर डूइंग ऑन इंटरनेट, मैनी केसेस में जो टास्क आप इंटरनेट पर कर रहे हैं वहाँ क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व है. ओके, सो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड बाय एवरीवन. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी एंड मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी. So now I think I am able to make you understand what is classical cryptography and what is modern cryptography. Still, if you have any doubt, you can ask me. Or if you have any query, you can also raise that query. नहीं, चलिए. सो लेट्स टॉक अबाउट ए कम्युनिकेशन सिनेरियो जहाँ पे क्रिप्टोग्राफी को हम बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो जनरली when you are जो क्रिप्टोग्राफी हम कहाँ यूज कर रहे हैं, when we are communicating on internet, है ना, या किसी कम्युनिकेशन सिस्टम से जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, then we require cryptography. So let's see a scenario of a communication system. Here you can see
here is one party, that is Alice, and here is Bob. Okay, so here we are representing, we are using the name of persons. So Alice and Bob, I'm using the term, so you might have got that impression that Alice and Bob are two persons. No, Alice and Bob are representing software processes. Okay, or you can say that softwares, or you can say हार्डवेयर डिवाइसेस ऑल्सो. हालांकि हार्डवेयर में भी अल्टीमेटली इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है. सो यू कैन थिंक ऑफ दैट देयर आर टू प्रोसेसेस, रिमोट प्रोसेसेस, जो कि एक दूसरे से डिस्टेंस अपार्ट हैं एंड ऑन इंटरनेट. सो एलिस इज सम प्रोसेस. एलिस इज रिप्रेजेंटिंग, एलिस मीन्स सम प्रोसेस दैट इज रनिंग ऑन वन मशीन, and Bob is some other process that is running on some another remote machine, and they are connected through internet or some communication mechanism. ठीक है. सो जनरली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल है हम बाई डिफॉल्ट इंटरनेट मान के चलते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. इट कैन बी नेटवर्क, एनी काइंड ऑफ नेटवर्क और एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, सो हियर वी हैव एलिस. एलिस इज कॉल्ड सेंडर. सो जो मैसेज सेंड करता है, इन केस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, हु सेंड्स द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर. सो फॉर एग्जाम्पल अगर किंग की स्टोरी में आए तो ए वाज द सेंडर. ठीक है. एंड देन देयर इज अनदर पार्टी. हियर यू कैन सी द बॉब. सो बॉब इज द receiver because Alice want to send the information to Bob. So Alice is the sender and Bob will be the receiver. So Bob is the party that will receive the message. Okay. Now जो king वाले example के केस में who was the receiver? B. Now obviously Alice want to send something to B, so obviously it will require a communication channel. So that communication channel may be a you can have variety of communication channel. It can be a Wi-Fi connection, or it can be a Bluetooth communication mechanism, or it can be some other kind of medium, communication medium. Even you can hire a postman or something like that, so that will create a communication channel. So variety of communication channel may be there. अच्छा, इस केस में जो किंग्स की स्टोरी ली थी उसमें कौन कम्युनिकेशन चैनल की तरह बिहेव कर रहा था आपके लिए? सो कम्युनिकेशन चैनल का काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू टेल मी what was the communication channel in case of the story that I told you. Spy. So spy was behaving as a communication channel. So communication channel का काम क्या होता है? It carries the information. ठीक है, from source to destination. Okay. Now generally जो communication channel है that is insecure one. Generally the communication channel is insecure one. Naturally वो insecure है. जैसे आपका spy है वो insecure है. बिकॉज स्पाई को पकड़ा जा सकता है, उसको आप टॉर्चर करेंगे, ही विल गिव द इन्फॉर्मेशन टू यू, और हो सकता है ना भी दे तो कोई और दूसरे तरीके से आप आसानी से उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली इफ़ यू ट्रांसमिट सम इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट, सो इंटरनेट में अगर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो एनीबडी कैन रीड इट. सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ वी रेफर ए कम्युनिकेशन चैनल एज ए पब्लिक चैनल. ठीक है, और अनसिक्योर चैनल. ठीक है, सो अनसिक्योर चैनल का मतलब है दैट मीन्स attacker have access to this channel and attacker can extract the information from there. So naturally जितने भी communication channel है हम उसे मान के चलते हैं they are unsecure in nature. Okay, because they are public channel, anybody can access them. अगर private channel है तो अलग बात है, that may be secure, but public channel है तो that means insecure होगा. चाहे आप वाईफाई यूज करिए, चाहे मोबाइल से कॉलिंग से आप मतलब GPRS यूज करिए, चाहे CDMA यूज करिए, चाहे आप GSM टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए, चाहे इंटरनेट यूज करिए, चाहे और कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए, ऑल आर अनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल. अनसिक्योर क्यों है? बिकॉज दे कैन बी एक्सेस्ड बाय द अटैकर एंड समटाइम्स वी कॉल देम पब्लिक चैनल. नाउ हमारा गोल क्या है? अनसिक्योर चैनल, इसी अनसिक्योर चैनल से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के साथ ट्रांसमिट करना है. जो भी हमारा सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव हो, कभी हम चाहेंगे कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड हो, कभी हम मैसेज ऑथेंटिकेशन पर जोर देंगे, कभी हम इंटीग्रिटी पर जोर देंगे, कभी किसी और चीज़ पर जोर देंगे. सो वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव एज पर अवर एप्लीकेशन. ओके, बट आवर चैनल विल बी ऑलवेज ए अनसिक्योर चैनल, जिसे हमें सिक्योर चैनल में लॉजिकली कन्वर्ट करना है. ध्यान रखना, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग एनी डिफरेंट एनी चेंज ऑन द चैनल. ऐसा नहीं कि हमने चैनल को चेंज कर दिया, हमारे पास वाईफाई है वही वाईफाई ही रहेगा, बट वी विल कन्वर्ट दैट अनसिक्योर चैनल by some way in a secure channel, और वो क्या है? क्रिप्टोग्राफी.
सो क्रिप्टोग्राफी की मदद से हम अनसिक्योर चैनल को सिक्योर चैनल में बदलेंगे। ओके जैसे जो स्पाई वाला मैकेनिज्म था वो अनसिक्योर था, लेकिन आपने उसे सिक्योर करने की कोशिश कैसे की कि उसके स्पाई के हेड पर मैसेज राइट कर दिया। और ओबियसली आप अपने हेड से कोई भी मैसेज इमेजिन करिए, उस समय दर्पण और ये सब मान लीजिए नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो स्पाई आपके हेड से मैसेज, खुद के हेड से वो मैसेज खुद ही नहीं रीड कर पाएगा। ठीक है, अब आप उसमें कह सकते हैं कि देयर में भी मल्टीपल वेज, कोई नई ट्रिक्स इस्तेमाल करके वो रीड कर सकता है, बट नॉर्मल वे में माने तो वो ही विल नॉट बी एबल टू रीड दैट इन्फॉर्मेशन। ओके सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी वांट टू ट्रांसफॉर्म आवर अनसिक्योर चैनल विच इज़ नेचुरली unsecure and it is accessible to public to a secure channel। ठीक है, बट ये नहीं कि हम उस चैनल को रिजर्व कर देंगे या कुछ और कर देंगे सो दैट हमारा चैनल सिक्योर हो जाएगा। वी विल डू सम क्रिप्टोग्राफी देयर, क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म के थ्रू हम उसे अनसिक्योर चैनल को सिक्योर चैनल में बदलेंगे। ओके नाउ हियर एलिस वांट टू सेंड सम मैसेज टू एक्स, सो दैट मैसेज इज रेफर्ड एज एक्स हियर। सो जनरली उस मैसेज एक्स को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, सो द मैसेज एक्स इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। समटाइम्स वी विल यूज द टर्म मैसेज और प्लेन टेक्स्ट, दोनों टर्म सिनोनिम के तौर पर हम यूज करेंगे। ठीक है, बोथ कन्वेज द सेम मीनिंग, प्लेन टेक्स्ट और मैसेज। देन जो सो देर इज सम अदर पार्टी, यहाँ पर नहीं दिखाई गई, ओके दिस वन ऑस्कर। सो ऑस्कर इज सम पर्सन दैट इज अपोनेंट टू बोथ एलिस एंड बॉब, एंड इसका गोल क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको कैप्चर करना, या फिर ये जो दोनों का सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव था एलिस एंड बॉब का, वो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को डिस्टर्ब करना, हार्म करना। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी थी तो उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना, अगर इंटीग्रिटी कर रहे थे तो इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देना, ऑल दैट। सो ऑस्कर इज सम अपोनेंट जो एलिस और बॉब के बीच के कम्युनिकेशन को या तो डिस्टर्ब करना चाहता है या उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड करके स्टील करना चाहता है, या जो भी एल नंबर ऑफ उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सो इट इज ए पर्सन और एंटिटी दैट इज हैविंग सम मैलिशियस इंटेंशन। ठीक है, मैलिशियस इंटेंशन towards Alice and Bob. Okay, so this Oscar is able to access this public channel. ठीक है, so Oscar represents an attacker or hacker or any some malicious party. Okay, so अब जो कम्युनिकेशन चैनल है ये नेचुरली अनसिक्योर है, हम इसे सिक्योर चैनल में कैसे बदलेंगे कि ये जो मैसेज एक्स है अब हम इसे एज इट इज नहीं भेजेंगे, क्योंकि एज इट इज भेजेंगे तो ऑस्कर आसानी से रीड कर लेगा। सो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू डू क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी हम क्या करेंगे, मैसेज जो एक्स है उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि ये एक मैसेज दूसरे अदर मैसेज वाई में बदल जाएगा। ओके, सो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, जो कोडिंग करना कर रहे हैं आप उसको, पहले हम कोडिंग बोलते थे, दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। सो व्हाट वी विल डू सम मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय सम एल्गोरिथम के थ्रू हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। So we will apply some encryption algorithm or encryption transformation over X so that X will be transformed into a message Y. ठीक है, and this message Y is called ciphertext. We will call this message Y. So X आपका है message और plain text, Y is called ciphertext. And sometimes simply हम इसे cipher भी बोलते हैं। Okay. सो वाई इज द सिफर टेक्स्ट। नाउ वाई एक स्पेशल मैसेज है, ध्यान रखना। सो वाई इज ए मैसेज जिससे एक्स रिकवर नहीं किया जा सकता until you do not know some secret और until you are not a valid party। सो y से x को मैं ट्रांसफॉर्मेशन का जो y से x का कन्वर्जन केवल एलिस या बॉब कर सकते हैं। ओनली एलिस और बॉब कैन डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन y टू x। सो हमने y के ऊपर x के ऊपर एक्चुअली एक इंक्रिप्शन मेथड लगाया है। लेट्स से दिस इंक्रिप्शन मेथड इज ENC, इट इज ए फंक्शन एक्चुअली। सो आपने इसको फंक्शन को x पास किया और y निकाल लिया। नाउ x से y कोई भी निकाल सकता है, लेकिन y से जो x है निकालने का काम इट कैन बी डन बाय बॉब ओनली और एलिस। समटाइम्स हम मानते हैं समटाइम्स के एलिस भी निकाल सकती है।
So either Alice or Bob will be able to transform y into x. That is our assumption. So हम अगर एक इंक्रिप्शन मैसेज ऐसा रिकवर कर लें जो x को इस तरीके से y में बदल दे कि y को देख करके आपको x के बारे में कुछ भी नॉलेज ना मिले, यू विल नॉट बी एबल टू नो एनीथिंग अबाउट y. ओके, वन थिंग. सो y आप रोक नहीं सकते, y ऑस्कर को मिल सकता है. ऑस्कर कैन हैव y in his possession, but he should not be able to recover x from this y. हालांकि वो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म के बारे में जानता है बॉब नोज व्हाट इज इंक्रिप्शन मैकेनिज्म दैट इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, यहाँ हम अज्यूम करके चल रहे हैं जो क्रिप्टोग्राफिक मॉडल होता है ओरिजिनल, वेयर वी अज्यूम दैट इंक्रिप्शन इज नोन टू एनीवन. इंक्रिप्शन मैकेनिज्म इज नोन टू एवरीबॉडी. ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्या है कि जो एलिस और बॉब कर सकते हैं ऑस्कर नहीं कर सकता, दैट मीन्स वाई से एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसके लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, जब इंक्रिप्शन करेंगे देन वी विल यूज ए सीक्रेट. सो एल्गोरिथम में ही प्रोविजन होगा, एल्गोरिथम विल अलाउ यू टू यूज ए सीक्रेट एट के, लेट्स से दैट इज वी कॉल इट सीक्रेट की. सो ये जो के है इज कॉल्ड सीक्रेट की, एंड जनरली वी विल हाइड दिस सीक्रेट की फ्रॉम ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट बॉब और एलिस के अलावा ये की किसी को नहीं पता होगी. सो ओबियसली जब आपने y को ट्रांसफॉर्म करते समय के y जनरेट करते समय x के साथ k इस्तेमाल किया है, सो ओबियसली x वापस रिकवर करते समय आपको k की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी. सो हम जो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, जो मैकेनिज्म बनाएंगे या क्रिप्टोग्राफिक मेथड जो डेवलप किएंगे, उसमें यह प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है कि हम एक सीक्रेट यूज करें दैट is called key or secret key, and without knowledge of this secret key nobody will be able to recover x from y. that means आप ओरिजिनल मैसेज निकालना नहीं सकते. सो नाउ अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसा इंक्रिप्शन मैकेनिज्म जनरेट कर लें सो ये डिवाइस या जिसके डिवाइस के थ्रू हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो हम उसे इंक्रिप्टर बोल सकते हैं, या जो पार्टी इंक्रिप्ट कर रही है हम उसे इंक्रिप्टर बोल सकते हैं. सो इंक्रिप्टिंग पार्टी जो है एलिस क्या करेगी, x को y में कन्वर्ट कर देगी एंड y को मैसेज के इस पर आप ट्रेवल करने देंगे. सो ओबियसली ऑस्कर कैन रीड दिस चैनल, सो ऑस्कर विल बी एबल टू रीड y, बट सिंस y डज नॉट कन्वे एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग x टू ऑस्कर, सो ऑस्कर विल नॉट बी एबल टू नो कि x क्या था. ठीक है, एंड दिस x विल अल्टीमेटली रीच y विल अल्टीमेटली रीच टू द बॉब, और बॉब के पास क्या है, डिक्रिप्टर है. That means Bob have a decryption algorithm and also Bob knows the key, and वो सीक्रेट की देने पर आप बॉब जो ना y से वापस x रिकवर कर लेगा. ठीक है, सो यहाँ पर जो पूरी सिक्योरिटी डिपेंड कर रही है वो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम पर है. ध्यान रखना, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इज नोन टू एवरीबडी, बट k इज हिडन. k मतलब जो सीक्रेट की है, दैट सीक्रेट की इज ओनली नोन टू एलिस एंड बॉब. सो अगर जिसके पास सीक्रेट की है वही y से x रिकवर कर सकता है और कोई नहीं. तो ओबियसली इस सेटअप में अगर एलिस एंड बॉब k को संभाल के रखते हैं अच्छे से, सो दैट ये किसी और के हाथ ना लगे, तो एलिस जो है ना अगर y भेज रही है बॉब को तो बॉब उससे x रिकवर कर लेगा. सो दिस इज हाउ द ए क्रिप्टो सिस्टम वर्क्स. ठीक है, दिस इज द मॉडल ऑफ ए क्रिप्टो सिस्टम. नाउ क्रिप्टो सिस्टम है तो ओबियसली इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे. सो मैथमेटिकली हम एक क्रिप्टो सिस्टम को, ये पूरा जो सिस्टम है हमसे क्रिप्टो सिस्टम बोलते हैं, तो एक मैथमेटिकली हम एक क्रिप्टो सिस्टम को एक 5 टपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट मी डू इट जस्ट जल्दी से कर लेते हैं, टाइम हो रहा है. ओके, सो वी हैव ए क्रिप्टो सिस्टम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 टपल. क्या क्या है, p इज द सेट ऑफ प्लेन टेक्स्ट. सो ऑल पॉसिबल प्लेन टेक्स्ट के पॉसिबिलिटी को सेट को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट स्पेस. सो p इज द प्लेन टेक्स्ट स्पेस, इट रिप्रेजेंट्स all possible messages that a sender can send. C is the set of cipher text और हम इसे cipher text space भी बोलते हैं. So it contains all possible cipher text. That means Y जो X से जो मैसेजेस से जो cipher ट्रांसफॉर्म होकर के जो मैसेज जनरेट हो सकते हैं उन सारे सेट को हमने उन सब का एक सेट बना लिया, दैट इज कॉल्ड cipher text space. K इज a key space, जहां से आपने की ली है जिस सेट से, जो की आर डिराइव्ड फ्रॉम ए सेट, तो उस सेट को हम बोलते हैं की स्पेस. ई इज एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जिसे आप एक सिफर टेक्स्ट इनपुट करेंगे, प्लेन टेक्स्ट इनपुट देंगे और एक की इनपुट देंगे, एंड इट विल जनरेट
एम ए स्क्रैम्बल्ड काइंड ऑफ मैसेज, स्क्रैम्बल्ड मतलब जिसमें लेटर्स को इधर उधर सब डिस्टर्ब करके रैंडमली डिसऑर्गेनाइज कर दिया है. So it will give you a cipher text. So encryption algorithm will generate the cipher text for you, and D is the decryption algorithm that will generate message from the cipher text given the key. K इसको required होगा. ठीक है. So this is called a crypto system. So crypto system में 5 component है. Now इस component में जो E और D है इनसे related एक requirement है, important requirement है. वो क्या है? For each key in K, K small in capital K, that means हर की स्पेस में जो भी की है उसके लिए एक इंक्रिप्शन रूल अवश्य होगा, जो रूल क्या करेगा कि पी के किसी मैसेज को सी में ट्रांसफॉर्म कर देगा. सो दैट मीन्स दिस इंक्रिप्शन रूल इज ए मैपिंग फ्रॉम पी टू सी. इसका मतलब क्या है? इट विल ट्रांसफॉर्म ए प्लेन टेक्स्ट इनटू ए सिफर टेक्स्ट. ये इंक्रिप्शन रूल है के. और सो आप कोई सी भी की दे सकते हैं, इट विल जनरेट ए सिफर टेक्स्ट, एक प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा. एंड साथ साथ इसी सेम की से जिससे आपने सिफर टेक्स्ट जनरेट किया है, उसी सिफर की से अगर आप डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को के प्रोवाइड करते हैं तो वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करेगी? सी से पी में मैप करती है. इसका मतलब एक सिफर टेक्स्ट को वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगी, और दोनों प्रोसेस एक दूसरे की रिवर्सिबल है. इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने इंक्रिप्शन किया है, जैसे एक्स था आपने ई से इंक्रिप्ट किया तो आपको कुछ भी जनरेट हुआ उसे आपने डी से डिक्रिप्ट कर दिया के लगा करके, तो यू विल गेट बैक द एक्स. ठीक है. दैट मीन्स इंक्रिप्शन है तो उसका डिक्रिप्शन भी पॉसिबल होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट. ओके. सो क्रिप्टो सिस्टम लगा करके हम एक अनसिक्योर चैनल को एक सिक्योर चैनल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज द मॉडल ऑफ क्रिप्टोग्राफी. ठीक है. सो आज यहीं क्लोज करते हैं. सो टुडे वी हैव सीन व्हाट इज क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी, एंड व्हाट इज द एक क्रिप्टो सिस्टम, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इन एलिमेंट्स के बारे में और फर्दर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, एंड वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो सिस्टम्स जो क्लासिकल डोमेन से हैं, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के डोमेन से. ओके.